Yeah. So in the last class, we have discussed transistor biasing. And we have studied that transistor biasing is why it is required. It is required to set an operating point. Right. And we have studied that there are three different types of biasing. One was fixed bias. Another is emitter bias. And third one is voltage divider bias. The job of all these three types of biasing is same, that is to set up an operating point, right? Last class we have covered this fixed bias, and what we found in the fixed bias, the circuit was something like this, where we having this RC, there was one resistance RB, and this terminal was grounded, and then this supply VCC, and this side we said this drop is VCE, that is collector to emitter drop, positive negative. Likewise VBE, positive to negative. So this was a circuit diagram for the fixed bias circuitry, and here we have derived the two equations. उससे हमने क्या निकाला था? We have derived the equation for IB. कितना आया था? VCC minus VBE upon RB. And from there we said IC is equal to beta times IB. And we also written one equation, VCE was VCC minus ICRC. Right. तो हमने ये एक नंबर वन इक्वेशन, नंबर टू इक्वेशन, दो इक्वेशन हमने निकाली थी फ्रॉम द इनपुट लूप एंड द आउटपुट लूप ऑफ केवीएल. उसके बाद हमने क्या किया था? We talked about the characteristics. सर एक मिनट पिछली स्लाइड करना. हाँ जी. कुछ डाउट है इसमें, बताओ. नहीं सर, डायग्राम बना रहा हूँ सर, एक मिनट. ओके. ये डायग्राम दिया हुआ लास्ट टाइम में, ये मैं सिर्फ रिकैप दे रहा हूँ आपको लास्ट क्लास का, अभी नया शुरू नहीं किया मैंने अभी. ठीक है. तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक दी थी आईसी वर्सेस वीसीई. तो हमारे पास जो यहाँ पर प्लॉट बने हुआ था वही हमने प्लॉट यूज किया था लास्ट टाइम. These are for the different values of IBs. Let me call it IB1, 2, 3, 4, where IB1 is smaller than IB2, smaller than IB3, smaller than IB4. It means current is increasing in this direction, right? And using the previous equation, जो हमारी ये equation थी output loop वाली, इसको हमने use किया था किस चीज के लिए? To find out the extreme points. Extreme points कौन से? Saturation point. जैसे मैंने कहा कि आपको equation है VCE is equal to VCC minus ICRC. Now, if I want to compute what is the maximum amount of current which can flow in this particular circuit, so for that I need to obtain one point on the y-axis. It means I need to put x-axis as 0. So I will put simply VCE to 0. So what it will give? IC max is equal to VCC upon RC. So we compute that this is a value somewhere here, IC max, that is VCC upon RC. Likewise, if I want to compute what is the maximum value of the VCE, so for that I need to put IC0. So if I put IC0 here, this, so what we got? That VCE is equal, VCE max is equal to VCC. That is my supply voltage. ये भी लास्ट टाइम देखा था, है ना? So उसके बाद हमने क्या किया था? ये जो दो आपको पॉइंट्स मिल गए, these are the extreme points. Then we try to join these 2 points. ठीक है. तो हमने इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया. Now we said this line जो हमने फॉर्म की है after joining these 2 extreme points is said to be as which line? Load line. Load line. Right. And we found that key whenever we are going to operate the BJT, we need to select an operating point. जिसका दूसरा नाम क्या था? Q point or quiescent point.
and this Q point always lies on the load line, right? तो हमने देखा था लास्ट टाइम कि अगर मान लो मैं Q point चूज करता हूं, सपोज करो एक मेरी ऑप्शन ये है, एक सपोज करो ऑप्शन मेरी यहां पर है, let's take this particular point and let's take at extreme points. Suppose I have taken 3 points, let me mark them, point number 1, point number 2, point number 3. So if I use point 3 as the extreme point or as the operating point, right? So what will happen? I need to make a projection over there. So this is now acting as my operating point. If I am selecting point 3 as, let me write here, if point 3 is set as Q point, then what will happen? We will draw this line perpendicular to this load line, right? And we will allow my input to come on this. So when it comes, what will happen? We can get an amplification in the positive half, but for the negative half, if I point it out downside, so it will not get any amplification because the extreme point on the x-axis is where? Is only 3 point. It means the negative portion है वो तो मेरा load में आ ही नहीं रहा, है ना? It is not coming under load line. So it means that this portion will get clipped off. Likewise, if suppose I select point 1, so point 1 अगर मैं select कर दूं क्या होगा देखो? Again I will draw a line. Now here if I set point 1 as operating point, then what will happen if you give now here input? So positive portion if I project, it is coming beyond IC max. तो हमने क्या बोला था कि हमारे सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करेगा? IC max. But I am getting here as per my input more than IC max. It means my circuit is not able to handle that input. Right? So what will happen? In this particular scenario, this positive portion will not getting amplified. Likewise, in the point number 3, the negative portion is not getting amplified. So what should be the strategy? The strategy is that we generally choose the operating point which lies almost in the middle of this load line. So what will happen when we give the input here? Both the positive halves and the negative halves, they are within my reach. So I can get the amplification if I project from this particular point to this side and from this particular point to this side. Likewise, on the downside. So on one side, I will get current amplification. On one side, I'm getting voltage amplification. So here, if I draw this reference, I will get this type. Likewise, if I draw downside, I will get this type. तो हमने ये देखा था कि जब भी मैंने Q point सेट करना है, वो कैसे सेट करना है? It should not lie either towards the cutoff or towards the saturation. It should lie mid in the active region, right? तो आपका जो ये point 3 था, ये किसके पास था? Cutoff के पास था, है ना? और यहाँ पर क्या था? Saturation के पास था. So we will not select that point which is lying near the cutoff or saturation. So if we want to achieve, let me write one line. If we want to achieve faithful amplification, then the Q point must be selected in such a way that the entire input swing lies on the load line. क्या मतलब है इसका कि जो मैंने ये इनपुट दिया, जैसे मैंने पॉइंट 2 की बात करूं तो मेरा इनपुट स्विंग क्या है? फ्रॉम दिस पीक टू दिस पीक. So the entire peak is able to get projected on the load line. But in the other case, either in point 3 or point 1, I am not getting both the peaks or both the swings to on the load line. So I am not getting amplification at that point. So I always select the point which lies in such a way that it should cover the entire input swing. My load line should lie on that. So that I can get the current amplification as well as the voltage amplification. So ये हमने last time देखा था. अब जो आज हमने start करना है उसके ऊपर आता हूं मैं. अब हमने देखना क्या है कि जो हमारा ये Q पॉइंट है, ये Q पॉइंट कैसे चेंज होता है? हमने कहा ना कि जब भी हमें ट्रांजिस्टर को यूज करना है तो पहला काम क्या है? एक ट्रांजिस्टर लिया आपने, इट कैन बी आइदर NPN
और पीएनपी, कोई भी लिया। सेकंड स्टेप क्या है, उसको पहले कॉमन मीटर में लगाओ। Once it is set at common emitter, then we need to do the DC biasing. DC biasing का मतलब क्या है? To set the operating point. So once we set the operating point of the transistor, then we need to apply the input signal. अभी इनपुट सिग्नल क्या होगा आपका? AC सिग्नल हो सकता है। तो इसको जनरली बच्चों को मैं ऐसे एग्जांपल देता हूं कि आपने ट्रांजिस्टर को पहले तैयार करना है ताकि वो आपका काम कर सके। आपका काम क्या है? आप चाहते हो कि उसको सिग्नल को एम्पलीफाई करे वो, राइट? सो फॉर ट्रांजिस्टर टू एम्पलीफाई अ गिवन इनपुट सिग्नल, फर्स्ट यू नीड टू बायस इट। बायस का मतलब क्या है कि हमें ऐसी वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट और वीसी की मेंटेन करनी है जिसके ऊपर आपको फेथफुल एम्पलीफिकेशन मिलेगी सिग्नल। जब आपने उसको रेडी कर लिया, देन यू अलाउ द इनपुट टू फॉलो ऑन इट, राइट? सो इफ आई ट्राई टू रिलेट with a general example, तो मैं जनरली एक और एग्जांपल देता हूं बच्चों को, like your any vehicle, आपके पास स्कूटर है या मान लो कार है, कुछ भी है। Now if suppose you want to drive that car or scooter, what you will do? You will first kick start it or self start it, right? तो जो ये self start है, ये जो kick start है, this is what? This is setting up an operating point, and once you apply the gear, accordingly it will run. So the gear is here input. So likewise in your transistor, first we set the operating point, that is a DC point. तो पहले Q point को set करना है. Once my Q point is set, then whatever the input signal will come on it, it will give the amplification of that signal. But अगर आपकी Q point की सिलेक्शन गलत है तो भूल जाओ, आपका ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर काम करेगा अच्छे से. So if you want to achieve a good amplification or a faithful amplification, always remember we need to set a operating point first. ये थंब रूल दिमाग में बिठा लो कि जब भी मेरे को ट्रांजिस्टर को यूज करना है, ये सीधा नहीं कि इनपुट होगा आउटपुट देगा, नो, वी नीड टू ऑपरेट इट इन क्यू पॉइंट. तो क्यू पॉइंट की वैल्यूज निकालनी है. क्यू पॉइंट का मतलब क्या है कि जो आपका ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बनाया है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो एक वैल्यू आपकी चूज करोगे, सपोज करो ये वाला पॉइंट है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली कुछ करंट की वैल्यू होगी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली कुछ वीसी की वैल्यू. तो आई विल कॉल दिस एज वीसीई क्यू एंड आईसी क्यू. So, जब भी मैं बोलता हूँ कि Q पॉइंट सेट करो, इसका मतलब क्या है? I need to set VCEQ and ICQ. So, जब मेरा ये चीज फिक्स हो जाएगा, ये मेरी कौन सी वोल्टेजेस हैं? DC वोल्टेजेस, DC वोल्टेज, DC करंट. So, बच्चे जनरली कंफ्यूज करते हैं कि सर हम अगर ट्रांजिस्टर को DC दे रहे हैं तो ये तो हमारी इनपुट हुई. नहीं भाई, DC is biasing is not the input. DC you are giving to just make the transistor to come in that zone where it can amplify. ठीक है, तो पहले इसको रेडी कर रहे हैं, उसको मेकअप कर रहे हैं, तैयार करेंगे, इस क्यू पॉइंट में सेट हो जाए, उसके बाद जो भी इनपुट आएगी अकॉर्डिंगली इट विल गिव यू आउटपुट. मतलब सर ये जो हमने जो डीसी बाइसिंग करी है, ये हमें एक मतलब लोड लाइन दे रही है, इसके ऊपर जो हमारा ट्रांजिस्टर होगा वो एम्पलीफाई करना स्टार्ट करेगा. यस, मतलब ये जो हमारा लोड लाइन है, इस लोड लाइन के ऊपर एक कोई पॉइंट होगा जहां पर आपको सिग्नल की मैक्सिमम एम्पलीफिकेशन मिलेगी या फेसफुल एम्पलीफिकेशन मिलेगी ज्यादा. ओके सर. ठीक है, तो आपने जब भी कोई पॉइंट पहले लोड लाइन ड्रॉ करनी है, ये लोड लाइन क्या कहते हैं कि आपकी एक्सट्रीमिटीज क्या है, कि आपकी बाउंड्रीज क्या है. जैसे मैं कहता हूँ कि यार मेरी बाउंड्रीज ये है कि आई कैन वर्क फ्रॉम 9 to 5, तो मेरा यूटिलाइज 9 to 5 के बीच में होगा ना. तो लाइकवाइज फॉर ट्रांजिस्टर आल्सो, तो ट्रांजिस्टर का मुझे पता है कि मैक्सिमम करंट कितना है, मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है, तो हमें ये एक्सट्रीम बाउंड्रीज मिल गई कि इसके अंदर ही मुझे ऑपरेट करना है ट्रांजिस्टर, इसके बाहर मेरा ट्रांजिस्टर काम नहीं कर सकता. ये कर सकता, ठीक है. राइट, तो हमने ये लोड लाइन, अब इस लोड लाइन के ऊपर कहां पर ऐसा पॉइंट है जहां पर मेरे को बिल्कुल बहुत बढ़िया एम्पलीफिकेशन मिल रही सिग्नल की, दैट आई वांट टू लोकेट. सो वो हमने लोकेट जब कर लिया, फिर इसको चेंज नहीं करना. अगर आपने मान लो, मैं आपको मैं बताऊंगा कि क्यू पॉइंट चेंज करने क्या इंपैक्ट पड़ता है. लेट्स टेक अ केस कि सपोज मेरा क्यू पॉइंट यहां पर था, राइट. अब मैंने कहा कि आईसीक्यू मैंने वीसीक्यू फिक्स कर दिया, मैं कह रहा हूं मैं चेंज नहीं कर रहा इसको. लेकिन इफ समहाउ सपोज आई वेरी IB क्या था मेरा, if you remember in that circuit, इनपुट करंट था. यस सर, इनपुट था, है ना. ये देखो मैं दिखाता हूं आपको यहाँ पर. तो ये यहाँ से आपका IB आ रहा था, यहाँ से आपका IC आ रहा था, और ये आपका नीचे जा रहा है IE, है ना. तो अब अगर मान लो आपने कहा कि मैंने क्यू पॉइंट फिक्स कर दिया, आई एम ट्रस्टिंग यू कि आपने क्यू पॉइंट बिल्कुल सेट कर दिया, लेकिन समहाउ सपोज करो मैंने आरबी को वेरी कर दिया,
है ना, कर सकता हूं मैं इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, कुछ भी कर दिया मैंने सपोज, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। इफ सपोज IB चेंजेस ड्यू टू चेंज इन RB, तो अगर IB चेंज होगा तो IB क्या होगा, आइदर IB इंक्रीज और IB डिक्रीज, दोनों में से एक ही बात होगी, है ना, या तो करंट बढ़ेगा या करंट कम होगा। करंट कब बढ़ेगा, जब मेरा RB कम हो जाएगा, IB इंक्रीज व्हेन RB डिक्रीजेस। व्हाई, बिकॉज IB क्या था मेरे पास फॉर्मूला, VCC माइनस VBE अपॉन RB, है ना। हाँ जी तो सर। अगर RB मेरा कम हो रहा है तो IB बढ़ रहा है, मुझे दिखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड, और IB डिक्रीज कब होगा, व्हेन RB इंक्रीजेस। इतना मुझे क्लियर है ऑलरेडी। तो अब मेरे को ये देखना है कि अगर मेरा IB बढ़ रहा है तो मेरा Q पॉइंट कहां शिफ्ट होएगा, राइट। सो फॉर दैट लेट मी टेक दैट इमेज, उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। हाँ, अब देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स मेरी थी कॉमन मीटर की, मैंने वही कैरेक्टरिस्टिक्स उठा ली। अब मैं कह रहा हूं कि मेरा मान लो Q पॉइंट पहले यहाँ पर था, लेट मी ड्रॉ लोड लाइन, सपोज रैंडमली बना रहा हूं मैं यहाँ पर, आपको पता लोड लाइन कैसे बनाते हैं, ठीक है। सो लोड लाइन मैंने मान लो ड्रॉ कर दी। अब मैंने कहा कि मैंने IB को ना Q पॉइंट मैंने यहाँ फिक्स किया, लेट मी कॉल इट एज Q1। I have taken a point on the characteristics, let lies on the load line, and let this point is Q1. This is corresponds to let IB Q is set as 30 microampere, है ना। तो अगर ये 30 microampere correspond, मैं नीचे देखूंगा तो मेरे को मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली ICQ निकालो और VCEQ। सो अगर ICQ की बात करता हूं, इट विल लाई ऑन दिस साइड, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली लेट्स से 3.5 सपोज, रैंडमली आई एम टेकिंग। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ VCE की, सपोज इट इज अप्रोक्सीमेटली, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, it is 3.5 milliampere and VC suppose 9 volt, suppose, right. Now by mistake let's my IB gets shifted to 60 microampere, कुछ भी RB चेंज किया मैंने, RB वाला मेरी बहुत कम होगी, इस फैक्टर से कम हुई कि मेरा IB 60 microampere हो गया, तो क्या होगा, from this Q point where I will get shifted, I will get shifted to this particular point, देख रहे हो, Q2। और अगर मैं कहता हूं मेरा मान लो IB जोन्स है, इट चेंजेस टू लेट्स से 10 माइक्रोएम्पियर विद इंक्रीज इन RB, तो क्या होगा, मेरा Q पॉइंट यहां पर आ गया। अब मुझे एक चीज देखो, ध्यान से सोचना कि अभी मैंने कुछ इनपुट नहीं लगाई है ना, अभी मैंने सिर्फ क्या किया, बायसिंग करी। जब बायसिंग करी तो मेरी जो बेस करंट था अगर वो वेरी होता है तो Q पॉइंट में कितना ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, एक तरफ टुवर्ड्स सैचुरेशन जा रहा है, एक तरफ टुवर्ड्स कट ऑफ जा रहा है, डिपेंडिंग ऑन कितना इंक्रीज किया वो। तो अब मुझे बताओ कि अगर ऐसा Q पॉइंट होगा जो आपका इनपुट करंट हल्का सा वेरी करने पे इतना वेरी करेगा, तो इज इट अ स्टेबल आउटपुट, स्टेबल आउटपुट और नॉट? नहीं सर, स्टेबल तो नहीं No, है। sir. तो यू इट इज नॉट ट्रस्टवर्दी, यस राइट। सर। वी कैन नॉट ट्रस्ट ऑन दिस ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर का बेकार ट्रांजिस्टर है, पहले कुछ था आपको सारा आउटपुट, क्योंकि आपका बेस करंट वेरी किया। So it means this fixed biasing technique which we have studied right now, it is not a very good in stability of the Q point because it varies with a slight modification in my base current. यस सर। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, let's take one more figure. Again import the same image. अब देखो, अब मैं कहता हूँ कि सपोज आपका जो सप्लाई वोल्टेज थी VCC, लेट्स से जैसे इस फिगर में गिवन है, लेट मी ड्रॉ लोड लाइन हियर फर्स्ट, लेट्स से दिस पॉइंट इज 17 वोल्ट सपोज, है ना। तो VCC मान लो मेरे 17 वोल्ट थी पहले, राइट। नाउ इफ यू रिमेंबर जो हमने IC मैक्स निकाला था उसका क्या फॉर्मूला था, VCC अपॉन RC, RC, है ना।
यस सर। अब अगर मान लो मैं VCC जो मेरा 17 वोल्ट था, लेट मी गिव इट VCC 1, ठीक है। अब मेरा VCC क्या हो गया 2, लेट्स सपोज चेंज टू 10 volts, and let's say VCC3 change to 5 volts. What will happen? Can you draw the load line for that? The answer is yes or no. यस सर। तो अब VCC अगर 10 volts होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि अब मेरा VCE max कितना हो जाएगा 10 volts. 10 volts, यस सर। तो इट मींस अब मेरा जो पहले 17 volts पे आ रहा था, अब कहां पर आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा 10 volts पे, राइट। नाउ लेट मी गिव यू रजिस्टर आल्सो। सपोज मेरा जो RC है वो 1 किलो ओम है, लेट्स से, ठीक है। तो अगर ये 1 किलो ओम है तो आपका पहले केस में कितना आएगा, समथिंग अबाउट अप्रोक्सीमेटली 17 मिलिएम्पियर। हाँ सर। डोंट लुक इनटू दिस फिगर्स राइट फॉर अ मोमेंट, ठीक है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पर तो कुछ और लिखा हुआ नंबर, मैं कुछ और बता रहा हूँ। सो आई एम नॉट नोइंग दिस नंबर्स, सो आई एम जस्ट टेकिंग रैंडम एग्जांपल कि सपोज मेरा RC 1 किलो ओम है, right? For RC 1 kilo ohm, if I compute the maximum value of IC max, that is coming out to be what? 17 volts divided with 1 kilo ohm. 70 milliampere आ गया? 70 milliampere, yes sir. So let me call it as ICC max 1, corresponds to VCC 1. Now, if I talk about IC max 2, जब मेरा VCC कितना है 10 volts, तो कितना होगा 10 upon 1 kilo? milliampere. 1 कितना होगा milliampere. 10 milliampere. 10 milliampere. तो somewhere हाँ. let's say 10 milliampere आपका यहाँ पर है. Yes sir. Let me call it as IC max 2 10 milliampere. तो अब लोड लाइन कैसी होगी मेरी, देखो ये Q10 ये एक्सट्रीम ये है और ये एक्सट्रीम ये है, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो, गेटिंग इट। अब एक और पॉइंट लो, 5 वोल्ट्स। 5 वोल्ट्स कहाँ है मेरा, यहाँ पर। तो 5 डिवाइडेड विद 1 किलो कितना आ जाएगा IC मैक्स 5 मिलीएम्पियर। 5 milliampere. लेट्स टेक इसका मिड ले लो वैल्यूज की, यहाँ पर सपोज करो, तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ये मेरा आ गया लेट IC मैक्स 3 इज इक्वल टू कितना आया था 5 मिलीएम्पियर, और ये 5 वोल्ट्स है। कितना क्लियर समझ में? अब मान लो मैंने जो क्यू पॉइंट सेट किया था पहले अपना, सपोज करो वो यहां पर था, अगर मेरा सेम अमाउंट ऑफ बेस करंट मैंने मेंटेन किया हुआ है IB, आई एम जस्ट चेंजिंग इन दिस केस व्हाट, आई एम जस्ट चेंजिंग माय सप्लाई वोल्टेज। ये ध्यान रखना जो मैंने आपको ये बता रहा हूं, दिस इज ओनली ड्यू टू सप्लाई वोल्टेज फ्लक्चुएशंस। सपोज करो मैंने बैटरी लगाई 17 वोल्ट की, थोड़ी देर बाद डिस्चार्ज हो गई, वो 10 वोल्ट रहेगी, फिर 5 वोल्ट रहेगी, क्वाइट ऑब्वियस हो सकती है ना। तो अब अगर मेरी सप्लाई सिर्फ चेंज हो रही है, बाकी कुछ चेंज नहीं कर रहा मैं, ना मैंने RC वेरी करी, ना मैंने बेस करंट वेरी किया, ना मैंने RB वेरी किया, सिर्फ सप्लाई वोल्टेज को वेरी कर रहा हूं मैं। तो आप क्या चीज ऑब्जर्व करोगे कि अगर मेरा IBQ, ये मेरा मान लो IBQ है 20 माइक्रोएम्पियर, ठीक है। तो अगर Q पहले यहां पर था तो अब कहां हो गया, यहां पर, फिर उसके बाद कहां होगा, यहां पर हो गया। So it means the Q point is getting shifted towards the left hand side of the graph. Saturation region जा रहा है. Yes, it is going towards saturation whenever I am only varying or decreasing the supply voltage. Yes sir. तो इसका मतलब यहाँ पर भी Q point की स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है। ठीक है। Now let me take the third case. Again, let me take the image. Now let's take the case that ki suppose my RC varies. Let's take RC1, RC2, RC3, 3 resistances in such a way that RC1 is greater than RC2 is greater than RC3. So in this we're talking about only variation in RC. बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, IB भी फिक्स है, RB भी फिक्स है मेरा, और मेरा VCE भी फिक्स, VCC भी फिक्स है। तो अब क्या होगा, अगर RC1 बढ़ी है, इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स फर्स्ट ड्रॉ लोड लाइन, पहली वाली। सो दिस इज योर लेट्स से VCE max, लेट्स से दिस इज से IC max। अब मुझे बताओ कि अगर सपोज करो मैं Q पर सेट करता हूं यहां पर,
30 microampere. But let's say this IB cube is 30 microampere. ये मेरा क्यू सर इसमें सर आई भी वेरी करता रहेगा और वो कम होता जाएगा जैसे जैसे हम मतलब उसकी तरफ जाएंगे। हाँ मतलब हाँ IB does IB depends upon RC? नहीं सर आईसी कैसे वेरी करेगा? आईसी वेरी करेगा। यस IC वेरी करेगा। Why? Because IC का फॉर्मूला क्या था? VCC वीसीसी अपॉन आरसी। तो जैसे जैसे RC बढ़ती जाएगी IC कम होता जाएगा मेरा। कम होते जाए। यस सर। राइट। तो अगर मेरा RC1 सबसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस है सो इट मींस अगर ये मैक्सिमम है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट क्या होगा? सबसे मिनिमम होगा। Yes, sir. Right. Yes, sir. So let me call IC max it as 3. Yes, sir. Somewhere here let me mark IC max 2. Somewhere here let me mark IC max 3 for say 1. So this is equal to what? VCC divided with RC3, VCC divided with RC2, VCC divided with RC1. अब VC तो मेरा चेंज नहीं हो रहा है इसके अंदर, है ना? तो अगर मैं इस पे वेरिएशन दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगा? I will join this point with the same point here. Likewise here also. So it means now also my Q point is shifting this side. तो मैंने अभी आपको क्या चीज दिखाई? I have shown you three things. Three things in the sense कि one, if I am going to change my collector resistance in the circuit, how my Q point is shifting. In the previous slide, we have talked about कि if I change the supply voltage, how my Q point is changing. And in this figure, we have talked about which case? IB के बारे में, है ना? IB change हो रहा है। Yes, sir. So it means if IB change होगा तो आपका ये Q point या तो ऊपर जाएगा अगर बढ़ा रहे हो, अगर नीचे जाएगा तो कम हो रहा है, right? So कहने का मतलब क्या होगा? These three things are deciding factors कि आपका Q point shift हो रहा है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जब भी मेरे को ट्रांजिस्टर को यूज करना है as an amplifier, we always says that कि we should have a stable operating point. पहली बात हो जाए, जैसे मैं कहूँ कि मान लो मैंने मार्केट से एम्पलीफायर परचेज करके आया, उसने मुझे बोला कि यार इसका गेन है 20 है, मैंने उसमें भरोसा कर लिया, 20 कर लिया, तो मैंने कहा अगर एक्स इनपुट दूंगा तो आउटपुट 20x आनी चाहिए हमेशा, लेकिन वो घर आकर देखा 10x आ रही है, कभी 8x आ रही है, कभी 6x आ रही है, so it is not a reliable. So why it is not reliable? Because in that case there are the fluctuations in the Q point. तो Q point अगर वेरी कर रहा है, वो क्यों वेरी कर रहा है? क्योंकि मैंने बायसिंग एक्सिस नहीं कर रखी उसकी. So every time when we are going to use a transistor, तो आपका पहली मोर रिस्पांसिबिलिटी क्या है? We have to set the operating point. इतना क्लियर हुआ? यहाँ तक किसको डाउट तो प्लीज आस्क द डाउट्स. नो सर. क्लियर? अच्छा, इसमें अगर एक टर्म आती है कि क्वेश्चन में आपको दिखेगा, लेट्स टेक अ क्वेश्चन, डिटरमिन the saturation levels, determine the saturation levels. Let me draw a circuit. Yeah, this question is given to you. The transistor whose beta is given to you as 50. There is a collector resistance RC known to be as 2.2 kilo ohm. There is one base resistance RB. Sorry, RB is equal to 240 kilo ohms. Supply voltage is given to you as 12 volts. All right, and emitter is grounded. Now, in this question, they have asked you that determine the saturation level. So, saturation level का मतलब क्या होगा? बताओ. So, you go back to characteristics. Saturation कहाँ पर आई? Saturation है यहाँ पे देखो. VCC. Saturation level. Saturation is on the left side. It means what is the saturation value of current? IC set. Okay, sir. तो वो कैसे निकालेंगे? So VCC upon RC. That's it. So IC set is VCC upon RC. वो कितना आ गया? 12 volts divided with 2.2 kilo ohms. Yes, कितना sir. आएगा? निकालो शाबाश. 1 second, sir.
5.45 5.45 units. milliampere. milliampere. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, ये क्लियर होगा सबको फिक्स्ड बायस. Yes sir. अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास? एमीटर बायस. ये उससे थोड़ा सा बेटर है, मोस्ट स्टेबल है क्यू पॉइंट्स में. इसमें करते क्या है, जो हमारा फिक्स्ड बायस का सर्किट था ना बच्चों, वो सब बनाओ एज इट इज सेम. कुछ वेरी नहीं है उसके अंदर. सिर्फ फर्क क्या है कि एमीटर पे एक रजिस्टर लगा देंगे बस. तो जो मैं आपको चीज सिखा रहा हूँ आपने याद भी वैसे रखनी है दिमाग में कि फिक्स्ड बायस में क्या है, एक बेस रेजिस्टेंस है, एक कट रेजिस्टेंस है सर्किट के अंदर. एमीटर में कुछ नहीं है. RE0 एमीटर बायस का नेम एमीटर बायस है क्योंकि हमने एमीटर में रेजिस्टेंस लगा दी इसके लिए. लगा बाकी दी, सब सर्किट सेम है. Now I want everybody to write the KVL equations and tell me if you have understood the fixed bias. तो आपने मुझे क्या देना है? You have to give me the answer that what is the value of IB here and what is the value of VCE. I am giving you 3 minutes for this. Do it. करना क्या आपने? सिर्फ केवीएल इक्वेशन लगानी. कहां पर? एक इनपुट लूप पे, एक आउटपुट लूप पे. बस हो जाएगा. Yes sir. जिसको नहीं आता मैं देखो यहाँ मार्क कर रहा हूं. ये जो ब्लू से मैंने मार्क किया, दिस इज योर इनपुट लूप. जहां पर इनपुट लूप लो, राइट. एंड रिगार्डिंग आउटपुट लूप आई एम मार्किंग इज ब्लैक. तो ये आपका आउटपुट लूप हो गया और ये वाला आपका इधर लेफ्ट वाला इनपुट लूप हो गया. तो आप इनपुट जंक्शन या इनपुट लूप पे लगाओ केवीएल और आउटपुट लगाओ तो आपको इक्वेशन मिलेगी आईबी की. कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसको केवीएल लगाना नहीं आता? बता दो मुझे, मैं समझा दूंगा फिर से. Sir, IB equals to IERE plus VCC upon RB. IB is equal to, बोलो शाबाश, Sir, IERE plus VCC upon RB. प्लस VCC Upon RB. Okay. If I want only in terms, IB in terms of only voltage is not current. Okay, sir. You can use the equation I is equal to बीटा IB plus IB. Beta IB plus, हाँ sir. बिल्कुल बिल्कुल जो आपको चाहिए, आपको सारे फॉर्मुलास पता है पहले वाले. You can use now. That's why I want to say, ask from your side कि देखते कितना समझ में आया आपको. क्या आप ड्राइव कर पाओगे नहीं कर पाओगे इसको? कोई स्टूडेंट इसको नहीं आता केवीएल लगाना, बता दो. आई कैन स्टार्ट. कोई अगर न्यू आया हो. Sir, it's VCC minus VBE upon RB plus beta plus 1 into RE. क्या नाम है बच्चे आपका? गुंजन. कुंजन. Perfectly computed. Very good. सबका आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो वी कैन ट्राई. देखो आउटपुट इनपुट स्टार्ट किया हमने सप्लाई से, VCC माइनस ड्रॉप अक्रॉस दिस RB, that will be what? IB into RB. Then minus base emitter drop VBE minus drop across RE, that is what? IE into RE. Now we know that IE in terms of IB क्या होता है? अगर नहीं भी आता सिंपल याद नहीं आता, सिंपल लिखो. I is equal to IB plus IC and IC is equal to what? बीटा IB है ना. तो IC को मैंने रिप्लेस कर दिया बीटा IB से.
तो क्या बन गया मेरा रिलेशन, IE is equal to बीटा प्लस 1 टाइम्स IB. Now substitute this IE over here. तो क्या मिलेगा आपको, लेट मी राइट डाउन, VCC माइनस IBRB माइनस VBE माइनस बीटा प्लस 1 इंटू IB इंटू RE इज इक्वल टू 0. देखो यहां से मैंने क्या किया, इस IE को रिप्लेस किया किससे, बीटा प्लस 1 IB से, राइट. सो नाउ इफ आई सॉल्व इट नाउ फॉर IB, तो क्या आएगा, IB टर्म्स इकट्ठी कर लो. सो IB इंटू RB प्लस बीटा प्लस 1 इंटू RE इज इक्वल टू VCC माइनस VBE, और IB इज इक्वल टू VCC माइनस VBE अपॉन RB प्लस बीटा प्लस 1 टाइम्स RE. तो अब अगर मैं इसको, इस IB को, जो मेरा बेस करंट आया, दिस इज IB बेस करंट फॉर एमीटर बायस सर्किट. नाउ इफ आई ट्राई टू रिलेट विद फिक्स्ड बायस, तो फिक्स्ड बायस में IB कितना था, VCC ऊपर न्यूमरेटर सेम था, है ना, RB था, न्यूमरेटर में सिर्फ RB था. RB. तो दोनों में फर्क देख लो कितना फर्क आ रहा है, कि इन दिस एमीटर बायस वी आर गेटिंग एन एडिशनल टर्म बीटा प्लस 1 टाइम्स RE. नाउ लेट्स गो बैक टू सर्किट. क्या मतलब, क्या इसको समझने की बात कोशिश करना पड़ेगा, कि जो आपका ये एमीटर रेजिस्टर लगाया है हमने क्या बोला था कि दिस इज कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, राइट. सो एमीटर इज कॉमन टू इनपुट आल्सो एंड आउटपुट आल्सो. लेकिन जब एमीटर के ऊपर मैंने रेजिस्टेंस लगा दी RE वैल्यू की, तो उसका इंपैक्ट क्या हुआ, इट अपीयर्स ऑन द इनपुट साइड बीटा प्लस 1 टाइम्स RE. तो इट मींस अगर मैं कहूं कि ट्रांजिस्टर का बीटा मान लो 50 है, तो इट मींस 51 टाइम्स RE मेरा वो अपीयर हो रहा है इनपुट साइड के ऊपर. सो दैट इज द इंपैक्ट व्हिच मेक्स इट मोर स्टेबल. तो जो डिनोमिनेटर में हमारा बीटा वर्सेस RE फैक्टर आया, दैट फैक्टर हेल्प्स अस कि अगर आपका IB में कुछ चेंजेस आ भी रहा है तो उसको इतना लेवल फर्क नहीं पड़ेगा. वो कैसे अभी देखते हैं हम आगे. अभी इतना समझ में आ गया सबको कि कैसे आया ये डेरिवेशन, इसमें किसी को डाउट कोई? नो सर. ओके, नाउ लेट्स अप्लाई फॉर द आउटपुट लूप. आउटपुट तो क्या आया, VCE कितना आया, बोलो शाबाश, किसने निकाला आउटपुट का? आया नहीं किसी का आउटपुट लूप में? ओके, अभी कर देते हैं. देखो आउटपुट लूप में क्या होगा, सप्लाई से स्टार्ट किया VCC माइनस ड्रॉप अक्रॉस RC ICRC माइनस VCE ड्रॉप माइनस IE RE इज इक्वल टू 0. इतना होगा, यस यस और नो? यस सर. हाँ. अब देखो जो आपका IC और IE है, इसमें क्या रिलेशन होता है, हम कहते हैं ना IE इज इक्वल टू IB plus IC. IC प्लस IB. यस सर. और IB क्या होता है, IC प्लस IC अपॉन बीटा. हाँ, है ना. और आई कैन राइट और IC इंटू बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा, है ना. यस सर. तो अगर मैं इसको कहूं कि बीटा कौन सा होता है, बीटा क्या होता है, करंट गेन ऑफ कॉमन एमीटर. इसकी वैल्यू 50 100 ज्यादा भी होती है, तो इसका मतलब क्या होगा, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, आई कैन राइट IE इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IC. व्हाई, बिकॉज इफ सपोज बीटा इज 100, तो क्या होगा 100 1 upon 100, that is equal to how much, 1.01. Yes sir. So we can say that emitter current is almost equal to the collector current for the case of this particular configuration. So here, if I want to compute this VCE, so I can write VCE is equal to what, VCC minus IC into RC plus R. अब VCE क्या होता है, VCE का मतलब VC
माइनस VE, है ना। अब VC क्या होता है? कलेक्टर वोल्टेज। कलेक्टर वोल्टेज कितनी है भाई? देखो जरा पीछे फिगर में, दैट इज द वोल्टेज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज माय VC, दिस पॉइंट इज माय व्हाट? VE। तो VC कितना हुआ? स्टार्ट किया सप्लाई से, ड्रॉप इसके ICRC हुआ, so I can write that VC is nothing but VCC minus IC, ICRC. right? And what about VE? VE is the emitter voltage above ground level, right? So it is 0. If I start on load side, 0 minus of IER is equal to 0, or is equal to V. तो V कितना आ गया? IE into RE. RE. क्लियर हुआ को नहीं हुआ? ठीक है सर. Similarly, if I want to write VBE, तो वो क्या होता है? VB minus VE. तो यहाँ पर VB कितना होगा? पहले वाले केस में VB कितना था हमारे पास? If you remember for fixed bias, we have written VB as 0.7. याद है किसी को? कोई बोलता ही नहीं। लास्ट टाइम जो हमने किया था फिक्स्ड बायस, उसमें हमने क्या कहा था कि VB क्या है? यहाँ वाली वोल्टेज, यस सर, उसमें एमीटर रेजिस्टेंस RE 0 थी, तो VB हमने लिखा था इक्वल टू VBE, दैट इज 0.7। यस बट सर, यहाँ पर sir. क्या होगा? बताओ मुझे शाबाश। फॉर एमीटर बायस व्हाट विल द वैल्यू ऑफ VB? एनीबॉडी? VCC minus IBRB. IBRB. वो तो एक हो गया। इफ आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड, If you start from the ground. IERE plus VBE. वेरी गुड। सो इट मींस IERE मेरा क्या है? एमीटर वोल्टेज, है ना? जी सर. तो Yes, सिंपल sir. का लॉजिक देखो, यहाँ पर तो ये VBE है और ये VE है, तो इट मींस if I write here the value of VB, it is nothing but what? VBE plus IERE. IERE और VE। VBE ठीक है. VE. ये क्लियर है सबको? इसमें डाउट किसी को? कोई जितना अभी तक किया, किसी को डाउट? कोई बताओ मुझे। If this is clear, let's No, take sir. one question। हाँ बोलो। सर क्लियर है? यस सर. हाँ, अब क्वेश्चन लिखो एक। Let me draw a circuit। सर कल कर ले सर। वो इतनी जल्दी? नहीं सर, ट्यूट वाली क्लास में है ना अभी चलो सर। मैं सुबह यार। मैं अटेंडेंस लूंगा, आप सॉल्व करना इसको, ठीक है? 20 volts, 430K, and this is 2K. This is 1K, right? And beta is given to you as 50. आपने निकालना क्या है? डिटरमिन IB, IC, VCE, VC, VE, VB, VBC। सर एक सेकंड के लिए आप प्रीवियस स्लाइड कर देंगे? बिल्कुल। थैंक यू सर. ओके। सर हाँ जी, नहीं सर एक सेकंड करना सर, लाइक ओके। सर इसमें जो ये VE है ये बता दो एक बार। V is equals to IE, IRE। V is equals to IE into RE। ये सही। हाँ, ये देखो मैं बताता हूँ आपको, सर्किट में देखो ध्यान से। VE कौन सी वोल्टेज? इस पर्टिकुलर पॉइंट वोल्टेज है ना? अब इस वोल्टेज और ग्राउंड में कितना फर्क है? ओनली इस ड्रॉप का, यस सर। है ना? तो अगर मैं यहाँ पर केवीएल लूप स्टार्ट करूँ तो क्या होगा? VE माइनस IERE इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे जो वोल्टेज है, मान लो मैंने इसको VE लिख रहा हूँ, दैट इज मीटर वोल्टेज, माइनस दिस इक्वल टू 0, और VE इज इक्वल टू I इंटू RE। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो एमीटर पे जो वोल्टेज है वो ग्राउंड नीचे कब हो रही है? आफ्टर अ ड्रॉप ऑफ IERE, ओके सर। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से एमीटर इज दिस वोल्टेज अबव द ग्राउंड लेवल, ओके सर। राइट? क्वेश्चन नोट करें सबने?
RB 430K, RC 2K, RE 1K, and 20 volt is supply voltage. Beta is given to you as 50. अब आप ये वैल्यूज निकालो, आपकी मैं अटेंडेंस देता हूँ मीनवाइल। अटेंडेंस बोलो अपनी। गुरविंदर, प्रेजेंट सर। अनुपम, अरुणिमा, प्रेजेंट सर। भव्य, दिवजोत, प्रेजेंट सर। जयदीप, प्रेजेंट सर। दीक्षा, अर्शदीप, प्रेजेंट सर। जितेंद्र, अनक, प्रेजेंट सर। अनिकेत, प्रेजेंट सर। सुजीत, प्रेजेंट सर। करणजोत, ध्रुव, सुखमन, युगप्रीत, श्रुति, प्रेजेंट सर। अभिषेक, प्रेजेंट सर। प्रभनूर, विख्यात। नेक्स्ट अक्षय, अंतरिक्ष, प्रेजेंट सर। जयजपाल, माधव, Present, sir. द्रोण, उत्कर्ष, हरजोत, देवांश, कुणाल, प्रेजेंट सर। लावण्य, प्रेजेंट सर। अर्चित, सक्षम, प्रेजेंट सर। पावनी, सर प्रेजेंट पावनी। सृष्टि, प्रेजेंट सर। जैस्मिन, प्रेजेंट सर। रितिश, मेघना, प्रेजेंट सर। दिव्यांशु, स्वभानु, अनायता, अर्पणप्रीत, हर्ष, अर्णव, गौतम, हीना, प्रेजेंट नितिका, सर। नितिका, प्रेजेंट सर। हाँ हो गया बच्चे। नितिका, मिताली, प्रेजेंट सर। योहानन, सक्षम, आदित्य, प्रेजेंट सर। कौन आदित्य? यस सर। आनंदी, रुशिल, यस सर। डेजल, ईशान, मनन, सुखमन, वंशिका, यश, लावण्य, आरव, प्रेजेंट सर। ओके, आरव, आर्यन, अभिषेक, अनिकेत, रुद्रांश, प्रेजेंट सर। अंकित, प्रेजेंट सर। गौरीश, प्रेजेंट दिव्यांश, हरप्रीत, सार्थक, प्रेजेंट सर। हरप्रीत प्रेजेंट। ओके, मनीष, प्रेजेंट सर। पुष्पजोत, प्रेजेंट सर। सार्थक, श्रीनिधि, शिवम, मंजोत, विनायक, विनायक, विनीत, ओके, नेक्स्ट अभिकरण, प्रेजेंट सर। अहमद, प्रेजेंट सर। अनिकेत, प्रकुल, सॉरी पारुल, पारुल प्रेजेंट। पुरंजय, आर्यन, अंशिका, प्रेजेंट सर। अनुज, प्रेजेंट। भवेश, ओके, भवेश, विशल, पीयूष, दिशांत, प्रेजेंट। कौन दिशांत? तो दिशांत वो जम्मू से है सर, उसकी 5 मिनट पहले वो और सुनंदन दोनों जम्मू से है, उनका फोन आया था, उनके कोई प्रॉब्लम आ गई सर, अभी कोई- लीव हुआ है, क्लास में थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हिमांशी, प्रेजेंट सर। करणवीर, जिगरजीत, प्रेजेंट सर। मुस्कान, प्रेजेंट सर। अभिनव, सर जसकीरत, जीत प्रेजेंट लगा दी? हाँ जी लगा दी बच्चे, लगा दी। दिख रहा है आपको, सामने दिख रहा होगा। नहीं सर, आपने स्क्रीन शेयर नहीं की। तो शेयर नहीं करी आज? रुको एक मिनट रुको, आज सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। कोई बात नहीं, विजिबल कर देते हैं, एक मिनट रुको।